اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں،
पुलिस के डिपार्टमेंट के और दूसरी जगहों पर वो मजाक की जगह बने हुए हैं। अगर उन इलाकों का नाम ले लो तो लोग शर्माते हैं। मेरे अजीजों, ये किसकी जिम्मेदारी थी इन बेहयाइयों से रोकने की, इन फवाहिशात से अपने नौजवानों को रोकने की। हैरत होती है कि दो चार हाजी साहब हमारे सामने बैठ करके वाकयात बयान कर रहे हैं, इस मोहल्ले में ऐसा चल रहा है, इस मोहल्ले में ऐसा चल रहा है। दिल पर छुरियां चलती हैं और अफसोस आपके ऊपर होता है। आप इन सबको तमाशा समझ करके बयान कर रहे हो। उम्मत लुट रही है और आप कहानियां बयान कर रहे हो। तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे के साथ ये तमाम हरकतें होती हो तो क्या मोहल्ले में इसी तरह चर्चे करते हुए बयान करोगे? जिम्मेदारी किसकी थी ये? और मैं अक्सर यहां पर कहा करता था जब यहां मौजूद था कि एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे इन इलाकों में कि आज भी हमारी मस्जिदों में ये जमात का जो सिस्टम है, मुतवल्ली होना, अराकीन होना, जमात का इनका जो होल्ड है वो दूसरे इलाकों में आपको नहीं मिलेगा। आप जाओ शुमाल हिंद में, दूसरे इलाकों में कोई ऐसी मजबूती नहीं नजर आती है कि मस्जिद की कोई कमेटी पूरे मोहल्ले को संभाल सकती हो, उनके मसाइल का हल करती हो। ये सब सिस्टम दूसरी जगह नहीं है, ये तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन ये जमातों के अराकीन जो भी मस्जिदों के बन गए, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां फरामोश कर दी। अब इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कमेटी बनाना है, मस्जिद देखना है। मोहल्ले से इनकी भी नजरें खत्म हो गई। हम देख रहे हैं कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें नौजवान, पहले क्या किसी की हिम्मत होती थी कि जमात वालों के सामने कोई बच्चे आकर के ऐसी हरकतें करें या उनके सामने बेहयाई करें? होता यह था, डर था मोहल्ले वालों को कि हमारे निकाह मंगनी वलीमे भी होने हैं, कभी जमात से बाइकाट ना हो जाए। डर लगता था लोगों को मोहल्लों में कि किसी के घर पर नजर न डाली जाए वरना जमात में फैसला चला जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। और आज ये पोजीशन आ गई कि जमात को कोई गिनता नहीं। तुम अगर अपना वकार खोते चले जाओगे तो मेरे अजीजों, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं देख रहा हूं इन छोटे बच्चों को हमारे, अब मैं हर एक का नाम लेकर के जिक्र करूं तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में बातें वायरल होती हैं, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं। स्कूल के चौथी क्लास के बच्चे को, चौथी क्लास का बच्चा मुश्किल से मेरे ख्याल से 9 साल की उम्र का होता होगा, उसके दादा मेरे पास लेकर के आए और कहते हैं कि ये नशा करता है। मैं कहा कौन सा नशा करता है ये? कौन सा नशा? नशा तो लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा को भी समझ जाते हैं, बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, उसको भी नशा समझते हैं और बड़े जो पुराने होते थे उससे भी बचते थे। तो उनके दादा ने, बच्चे का जो दादा है, पोते को जो लेकर के आया, कान पकड़ करके कहता है कि हजरत मुझे तो पता नहीं ये कौन सी चीज है, लेकिन सुना है कि ये चरस है, गांजा है, अफयून है, ये तमाम चीजें। हैरत हुई, 9 साल का बच्चा से पूछा कहां से तुम्हारे पास ये सब चीजें आई? कहा स्कूल में तो मिल जाती हैं, बाहर से कोई भैया आते हैं और दे भी देते हैं। मेरे अजीजों, जिम्मेदारी का एहसास करो। ये वो बच्चे हैं जो उम्मत का मुस्तकबिल हैं। दर्द होता है इन नौजवानों को देख करके। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये भोली उम्मत, जिसके लिए मेरे आका रात रात भर खड़े होकर के रोया करते थे, आज वो उम्मत का यह हाल है कि अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पीठ पीछे डाल चुकी। हालात ऐसे कि नौजवान आज यही सोच करके बैठ गए, जैसे इनकी उम्र 16 साल के ऊपर होने लगी, सबसे पहला इनका काम है कि कोई लड़की को फांस लिया जाए, उससे मुआशका करें, इश्क की दास्तानें लिखी जाएंगी। यही सारी जिंदगी के मकसद हैं तुम्हारे। 16 साल तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, अब तो स्कूल के छोटे से बच्चे ये तमाम फंडे हल करके बता देते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ये तमाम चीजें छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मौजूद है और वो पुराने जमाने के बूढ़ों से ज्यादा जानते हैं। बेहयाइयों का दौर आ गया। अब मुझे वो हदीस याद आती है, अभी जस्ट मस्जिद में आते हुए कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी जब किसी ने आकर के मुझसे ये कहा कि यहां वो मामला भी है कि भाइयों ने बहन के साथ जिना किया है। कब्रिस्तान देखते हुए मुझे मेरे मुस्तफा की वो बात याद आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक दौर तुम पर ऐसा आएगा कि तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे तो तुम्हें यह ख्याल आएगा काश मैं उसमें होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो जा चुके, जो दफन हो चुके, वो बहुत सारे फितनों से महफूज हो गए हैं। हमारा हाल है अभी मुकाबले का। हमें ये चैलेंजेस का मुकाबला करना है। गुनाहों का ऐसा दौर दौरा है, किससे कहा जाए। कभी इस बात का भी डर लगता है कि पूरी जमातें उम्मत मुस्लिमा को अपने टारगेट पर रखी हुई हैं। तुम्हें क्या नहीं पता, आज नहीं देखते हो कि उस सुबह से शाम तक सोशल मीडिया भरा हुआ दिखता है, इस्लाम को गालियां देने वालों की एक अंबार है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर निशाने नहीं बनाए जाते। आज टीवी खोलो, किसी चैनल को देखो तो इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले कुत्ते बैठे हुए होते हैं, भौंक रहे होते हैं। कुरान की आयतों पर डिस्कशन चल रहा है, अजान को लेकर मसाइल उठाए जा रहे हैं, कलमे पर बात आ गई, तुम्हें सब पता है। और इन हालात में जब घर को आग लगी हुई है, नौजवान बच्चे अय्याशियों में मुब्तला है, ये लड़कियों को फंसाने में मुब्तला है, फेसबुक चैट करते हुए पूरी रातें गुजारने में मसरूफ हैं। और इन हालात का कौन जिम्मेदार है? मेरे अजीजों, सिर्फ हमारी तकरीरें नहीं, उम्मत का अपना अपना हिस्सा उसे अदा करना होगा। जो जिस चीज का जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा तो कयामत के दिन सवाल होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। मेरे आका ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है अपने नीचे वालों का। कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा, तुम्हारे नीचे वाले बिगड़े क्यों थे? तुमसे जो मातहत थे वो बिगड़े क्यों थे? बाप से उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, मोहल्ले के बड़े जिम्मेदार से उसके मोहल्ले वालों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे आसपास रहने वाले बिगड़े क्यों थे? यहां जिम्मेदारी का एहसास करो। अब तो यह भी डर लगने लगा, पहले का वो सुनहरा माहौल था, हम किसी मोहल्ले से गुजरते थे तो इस्लाह करने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, नमाज जाने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, टोपियों वाले, नए नए नौजवान दाढ़ियों वाले भी नजर आते थे। आज खाल खाल है। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ को लोगों को बुरी लग रही होंगी। तबलीग करने वाले बहुत सारे मुबल्लिगीन भी बनते थे, अपनों में से ही तो बनते थे मुबल्लिगीन, वो कहां चले गए? उन्होंने भी अपना सेफ जोन बना लिया कि हम अपने हल्के में रहेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मर रही है कौम तो जाए, उसको कौन देखे। वो इस्लाह का शोबा भी छोड़ दिया गया है और अब तो इस्लाह करने वाले हमारे मोहल्ले से भी नहीं गुजर रहे हैं। अब सुनो हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसी जमाने के लिए शायद हुजूर फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो इस्लाह की बात करेगा, जो ईमान की बात करेगा, लोग उसको इतनी ताज्जुब से देखेंगे जैसे चोर को देखा जाता है। दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, इस्लाह की बात करने वाले को हुजूर फरमाते हैं जैसे जिना करने वाले को ऐब से लोग देखते होंगे, ताना देंगे, उसी तरह से एक वक्त ऐसा आएगा कि मोमिन को ताना दिया जाएगा, ये देखो ये मुसलमान है, ये देखो ये टोपी वाला है, ये दाढ़ी वाला है। वो दौर आएगा, बल्कि मैं समझता हूं उस दौर में हम जी रहे हैं। लोग आज क्यों अपने आप को मॉडर्न और अपने आप को सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि वो इन तानों से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं मोहल्ले में खड़े होकर के अगर किसी की इस्लाह की बात करूंगा तो लोग मेरा पिछला निकाल देंगे, मुझे भी बोलेंगे जुमा 8 दिन हो गए, अभी हज को चला तू। ये सारे ताने तो सुनने पड़ेंगे मेरे अजीजों। क्या वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इतने बड़े मिशन को नहीं उठाया था, जिनके पुराने हालात ये थे? हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब ये हदीस पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इश्क और मोहब्बत कहते किसे हैं? हजरत अनस कहते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, मदीने में लोग शराब पीते थे, सब धीरे धीरे शराब हराम की गई है। एक वक्त ऐसा आया था कि शाम का वक्त था, कहबा खाने जहां पर शराब बिकती थी, लोग आकर के बैठ करके पीते थे जैसे होटल होते हैं। हजरत अनस कहते हैं मैं शराब लोगों को प्यालों में भर कर दिया करता था। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, कोई डिंडोरची ऐलान कर रहा था, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। ऐलान कानों में सुना। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ से प्याली गिर गई। 50 साल 60 साल पुरानी शराब वो लोग जमा करके रखते थे, ऐसे नहीं नई नई शराब, 50 साल पुरानी मटकों में जमा की हुई शराब होती थी उनकी पीने वाली, उसमें फख्र करते थे। हजरत अनस कहते हैं मैंने तो प्याली छूट गई, लोग जो बैठे हुए थे कोई अपने मुंह से लबों तक लगाया हुआ था, वहीं से उसने पटक दिया। आवाज आई, वहीं से फेंक दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम हो गई, पटक दिया। मैं सोचता हूं, कभी पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्या सहाबा में ये फरमा बरदारी का जज्बा था। उनके कानों में सिर्फ बात पड़ी, वो भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह की नहीं, कोई ऐलान करने वाला बयान कर रहा है। वो ये सोच तो सकते थे कि अभी कानून आया, इंप्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, आज का तो पी लें, कल जाकर के हुजूर से बात कर लेंगे कि सही में हराम हुई है नहीं, कंफर्मेशन के बाद छोड़ देंगे। नहीं, सिर्फ किसी एक मुसलमान की आवाज आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सहाबा ने तोड़ दिया मटके। 50 साल पुराने। हजरत अनस कहते रात होते होते मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी, जिनके यहां जो जो जमा रखा था सब उठा करके फेंक दिया। यह उम्मत थी मेरे मुस्तफा की, ये सहाबा की फरमाबरदारी थी। इसको कहते हैं इश्क,
اس کو کہتے ہیں محبت. کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو. کیا آپ تب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو، تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیزو. اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں. آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں. 10 سال گزر چکے. میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسئلے پہ پھر آئے. یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں. قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں. 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے. اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے. ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئی، گھروں کے حالات خراب ہو گئے. کتنے ایسے ہیں. ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو. اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے. کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے وہ جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے. اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں
किन चीजों की ये बातें लेकर बैठे हैं बेटे और बेटियों की कि ये इस तरह की हरकतें करते थे? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात याद रखो, पूरे मुआशरे में, मोहल्ले में एक जगह कोई ज़िना करता है तो पूरे मोहल्ले की बरकत खत्म कर दी जाती है। नासूर है वो, कैंसर की तरह, कैंसर की पौड़ी जिस तरह पूरे जिस्म में जहर पैदा करती है, एक बेहयाई और बदकारी वाला नौजवान पूरे मुआशरे के अंदर वो नासूर बनकर जहर फैलाता है। तुम्हारी बेटियों तक भी वो हरकतें आएंगी, तुम्हारे बेटे भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारियों का एहसास सारे लोग मिलकर के करें, एक आदमी नहीं। ये बेचारा खतीब कब तक यहां से पुकारेगा, एक कोई मुबल्लिग कब तक इस्लाह करेगा? हर एक की जिम्मेदारी है। आज गलती किसकी है पता है? पूरे मोहल्ले में 5% या 10% जुआरी होते हैं। 5% से भी कम होते हैं जुआरी और सूदखोर या शराबी या जानी। अक्सरियत तो अच्छे लोगों की होती है, लेकिन वो अच्छे लोग इतने भयानक होते हैं, याद रखना। इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जुआरी की सजा होगी, क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियां आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे? तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं? तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फला नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे, गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है, तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बूहाली का शिकार होती है। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरा उठेगा उसको पकड़कर बंद करेंगे और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो? चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है, तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो और दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात, ऐ नौजवानों, दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे जहां इस्लाम का मरकज रहा, जहां से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने भी क्या सोचा हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर छोड़ देंगे, ये सारा कुछ मोबाइल से, गूगल से, इंटरनेट से सीखते रहेंगे? कल को यही बच्चे खड़े होंगे जो अपने नबी को नहीं पहचानते, वो अपने बाप को क़यामत में क्या पहचानेंगे? और तुम्हारे मरने के बाद क्या ही साले सवाब कर सकेंगे? इधर तुम्हारा जनाजा ला करके रखा गया होगा, तुम्हारा बेटा बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा होगा, नमाज हो जाएगी तो उठाऊं और ला करके दफन करके आऊं, उसे तौफीक भी नहीं होगी कि वो तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके। क्यों ऐसे मुआशरे में जीने की जरूरत है? हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा अता किया, उस मुआशरे में अमन भी है, इज्जत भी है, वकार भी है। आओ वापस से फिर इस माहौल को बनाने में आप सब सतर्क हो जाओ, मुतहर्रिक हो जाओ। हर मोहल्ले के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, तुम 5 ही सही 10 ही सही खड़े हो जाओ जिम्मेदारी लेकर के कि हम अपने मोहल्ले में बेहयाइयां नहीं होने देंगे। इनकलाब आएगा मेरे अजीज।
तुम ये मत सोचना कि हम 5 और 10 लोगों से क्या होगा, तुम अपनी ताकत पर कभी मत ध्याना, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आज से 5 साल पहले हुबली की एक मस्जिद से 50 लोगों के बीच में मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था, आपको पता होगा। हमने यहां से मोबाइल का चैलेंज क्या किया था। यह रब्बुल आलमीन का करम है कि पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में वो आवाज पहुंचाएगी, जिसको पहुंचना था उसको भी पहुंची। तो कभी ये मत सोचना कि मेरे एक के चाहने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आवाज उठा करके तो देखो, इस्लाह के लिए खड़े होकर के तो देखो। बाजू हमारे कमजोर हैं, रब्बुल आलमीन की ताकत कमजोर नहीं है। तुम अगर खड़े हो गए इस्लाह के लिए तो अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमाएगा। एक नहीं मानेगा, 2 नहीं मानेंगे, हो सकता है कोई तो जियाला होगा जो तुम्हारी दावत पर लब्बैक कहेगा। तुम अपने घर की दावत थोड़ी ना दे रहे हो। अगर 5 नौजवान खड़े हो गए हर मोहल्ले से और वो दूसरे बच्चों की इस्लाह के लिए कोशिश करते रहे, खुदारा कभी यह मत कहना कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी तंजीम में आ जाओ। एक बात मैं बताता हूं, इस उम्मत की एक रग को मैं जानता हूं, ये जितनी भी बिगड़ी हुई हो, बाप का वास्ता, मां का वास्ता, उस्ताद का वास्ता, पीर का वास्ता, हो सकता है नाकाम हो जाए। बिगड़े हुए नौजवान को एक बार आमीना के लाल का वास्ता दे करके देखो, एक बार मेरे मुस्तफा के नाम का वास्ता दे करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़हन और दिमाग में मोहब्बत पैदा कर ही देगा। ये बिगड़ा हुआ है लेकिन आज भी अपने नबी से मोहब्बत रखता है, और उसी मोहब्बत का वास्ता दे करके इस्लाह का काम करो। वरना आज जो मैं सुन करके आया हूं, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, इतनी देर में बोल लिया, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। बताओ मेरे अजीजों, जिसके इलाके में आकर के उसको यह खबर दे दी जाए कि आपके इलाके में भाई बहन से जिना कर रहा है, उसे बोलने की क्या जुर्रत होगी, उसे खड़े होने की क्या ताकत होगी। दिल दुखता है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस पोजीशन पर आ गई कि हम गैरों में भी ये बात नहीं सुन पाते, गैरों में बात नहीं सुन पाते। मुसलमानों के घरों में ये चीज हो सकती है। इसलिए आज मेरा ये पैगाम है, अगर सारे लोग जिम्मेदारियों का एहसास ना करेंगे तो कल को पकड़ हमारी भी और तुम्हारी भी होगी। जमात के अराकीन, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। अल्लाह ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए इस मस्जिद की खिदमत अता की है। हर मस्जिद के लिए कह रहा हूं, इसी मस्जिद की बात नहीं। तुम अपना खोया हुआ वकार उठाओ, संभालो। 2-4 लोग तुम्हारे इन फैसलों के खिलाफ हो जाएंगे, कोई परवाह ना करो। तुम अगर इस जमाम को मजबूती से पकड़ लोगे कि मुआशरे में इन बेहयाइयों और गंदगियों को हम होने नहीं देंगे, तो हो सकता है 2-4 लोग मुखालिफ होंगे, लेकिन देखना अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद के लिए फरिश्तों को उतारेगा। क्या उम्मत मुस्तफा की इस्लाह के लिए बैठा हुआ है। दुनिया कोसती है तो कोसे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कोई बच्चा बिगड़ता है तो मुआशरे के जिम्मेदार अराकीन जमात इसका बहुत बारीकी से जायजा ले और उस पर पकड़ बनाए, वरना हाथ से निकल जाने के बाद फिर इस्लाह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमको खैर उम्मत में जिस तरह से रखा है, हमेशा खैर उम्मत के इस लक़ब को संभालने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमारे इस बिगड़े हुए मुआशरे को फिर से इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। या रब्बल आलमीन, या करमल अकरमीन, तेरे दरबार में आजिज़ाना फकीराना इल्तिजा है कि मौला, हम वैसे ही बगैर किसी क़ियादत के भटके हुए हैं। अल्लाह, हम किसी के साथ कोई बगैर मरकजियत के आवारा है। अल्लाह, तू भी हमें तन्हा ना छोड़ दे। तेरे नबी का वास्ता मौला, इस उम्मत को इस यतीमी की हालत में तन्हा ना छोड़। हमारे मुआशरे में गैब से इस्लाह करने वालों की जमात पैदा फरमा। अल्लाह, उलमाए सालिहीन को हमारे दरमियान पैदा फरमा। हमारी कौम को और हमारे बच्चों को तेरे हबीब पाक का सच्चा शहदाई बना दे। अल्लाह ए करीम खुदा, जिन बेहयाइयों और बुराइयों से हमारा कलेजा मुंह को आता है, उन बेहयाइयों और बुराइयों से हमारे घरों के दरवाजों की हिफाजत फरमा। ये बेहयाई हमारे घर के दरवाजों पर दस्तक न दे। हमारी औलाद, हमारी बहनें, हमारी माएं, सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। मौला, आखिरी दम तक तेरे नबी पाक के गुलामों में